پرائم ٹائم نیوز بلیٹن کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے جامعۃ المفلحات اینڈ فلاح گروپ آف اسکولز حیدرآباد۔ السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے پرائم ٹائم میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ میں ہوں فرزان احمد۔ سب سے پہلے پیش ہے پرائم ٹائم کی ہیڈ لائنز۔ کانگریس کی کورین کمیٹی تلنگانہ کے دورے پر، ریاست سے صرف 8 لوک سبھا سیٹوں پر کامیابی اور اس سے جڑے موضوعات پر بات چیت۔ تلنگانہ کانگریس حکومت پر الزامات لگانے کے بجائے شہر کی ترقی کے لیے مرکز سے فنڈز لائیں۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر کی بی جے پی ریاستی صدر کشن ریڈی پر سخت تنقیدیں، کے ٹی آر پر بھی نکتہ چینی۔ سابق ایم پی اور سینئر کانگریس لیڈر وی ہنمت راؤ نے راجیہ سبھا کی مخلوعہ نشست پر آج پیش کیا اپنا دعویٰ۔ کہا گزشتہ 8 سالوں سے انہیں ایک بھی عہدہ نہیں ملا۔ حکومت تلنگانہ نے 15 IPS عہدیداران کے تبادلوں اور پوسٹنگ کے احکام جاری کر دیے۔ چیف سیکرٹری شانتی کماری نے جاری کیا GO۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے سبزیوں کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں۔ بڑھتی قیمتوں نے عام آدمی کا بجٹ خراب کر دیا۔ حکومت مہنگائی پر کرے کنٹرول، شہریوں کا مطالبہ۔ اور فلسطینی شہر غزہ کے مغرب میں اسرائیلی فوج کی تازہ بمباری، کم سے کم 30 فلسطینی شہید اور درجنوں ہوئے زخمی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی اور پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ شروعات کریں گے تلنگانہ اور حیدرآباد کی خبروں سے۔ کانگریس کی کورین کمیٹی تلنگانہ کا دورہ کر رہی ہے۔ گاندھی بھون حیدرآباد میں اس کا ایک اجلاس ہوا۔ اس کمیٹی کی میٹنگ میں تلنگانہ سے کانگریس پارٹی کے لوک سبھا الیکشن میں مظاہرے اور اس سے جڑے موضوعات پر بات چیت کی جا رہی ہے۔ تلنگانہ میں لوک سبھا کی مجموعی طور پر 17 سیٹیں ہیں، جس میں سے صرف 8 سیٹوں پر کانگریس کامیاب ہو سکی اور اس سلسلے میں تجزیہ اور کم سیٹوں کے حصول کی وجوہات جاننے کی کمیٹی کوشش کر رہی ہے۔ کانگریس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی میٹنگ میں تلنگانہ کانگریس ورکنگ پریزیڈنٹ اور MLC مہیش کمار گوڑ اور دیگر نے بھی شرکت کی ہے۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے بی جے پی ریاستی صدر کشن ریڈی پر سخت تنقیدیں کی اور کہا کہ تلنگانہ کانگریس حکومت پر الزامات لگانے کے بجائے شہر حیدرآباد کی ترقی کے لیے مرکز سے فنڈز لائیں۔ انہوں نے کہا کہ KTR اور کشن ریڈی صرف الزامات لگاتے آئے ہیں۔ پونم پربھاکر نے بھی کہا کہ حیدرآباد کی ترقی کے لیے کشن ریڈی کے الزامات کا سابق ریاستی وزیر KTR کو جواب دینا چاہیے۔ کشن ریڈی جی حیدرآباد ڈیولپمنٹ کے بارے میں غلط بات کہنا بند کریے۔ حیدرآباد کا برانڈ امیج کا نقصان ہوگا۔ میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی 10 سال سرکار میں آپ 5 سال ٹورزم منسٹر تھے۔ حیدرآباد ایک ایسا ہسٹوریکل آرکیالوجی ایک مہانگر ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کانگریس پارٹی یہ پوچھنا چاہتے ہیں، کیا کبھی آپ حیدرآباد ڈیولپمنٹ کے لیے کہیں 1 روپیہ لائے؟ نہ کہیں GHMC کو اسمارٹ سٹی بنائے، نہ GHMC کا امرت اسکیم میں لگائے۔ 15th فائنانس کے علاوہ کیا کچھ پیسے کبھی 1 روپیہ بھی آیا؟ آپ حیدرآباد کا ڈیولپمنٹ کو کوئی کچھ کارروائی نہیں کرتے، فنڈز نہیں دلاتے، مگر آپ حیدرآباد کو کرٹیسائز کرنے میں لگتے ہیں۔ یہ ہم نہیں دیکھنے، خاموشی بیٹھنے والا نہیں ہے۔ اور KTR صاحب دونوں مل کے، وہ تو میونسپل منتری تھے، میں KTR کو بول رہا ہوں، ڈیمانڈ کر رہا ہوں، بولو کشن ریڈی کا جواب دیجئے۔ کیا کشن ریڈی جی حیدرآباد کے بارے میں بات کر رہے؟ حیدرآباد کے لیے کشن ریڈی جی نے کیا کیا؟ یہ سب 10 سال حکومت میں میونسپل ایڈمنسٹریشن منسٹر تھا KTR صاحب، کشن ریڈی کو جواب دینا ہے، مگر خاموشی ہے، دونوں کا دوستانی ہے، اسی لیے سابق MP اور سینئر پردیش کانگریس لیڈر وی ہنمت راؤ نے راجیہ سبھا کی مخلوعہ ایک سیٹ پر آج اپنا دعویٰ پیش کیا اور کہا کہ گزشتہ 8 سالوں سے انہیں ایک بھی عہدہ نہیں دیا گیا۔ اگر انہیں حالیہ انتخابات میں سکندرآباد پارلیمانی حلقے سے پارٹی ٹکٹ دیا جاتا تو ان کی کامیابی یقینی تھی۔ پارلیمانی الیکشن میں ٹکٹ کے معاملے میں ان کے ساتھ ناانصافی کا بھی انہوں نے الزام لگایا۔ ہنمت راؤ نے آج گاندھی بھون میں پریس کانفرنس سے خطاب کے دوران یہ بات کہی۔ اس دوران یہ بھی واضح ہے کہ وی ہنمت راؤ سابق میں 3 میعاد کے لیے راجیہ سبھا کے رکن رہ چکے ہیں۔ کانگریس کی تاریخ میں 3 مرتبہ راجیہ سبھا کے لیے کسی بھی قائد کو نامزد نہیں کیا گیا۔ انہوں نے انڈین کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی محمد سراج سے چیف منسٹر ریونت ریڈی کی ملاقات کا بھی خیر مقدم کیا اور انہیں ریاستی حکومت کی جانب سے ملازمت کی فراہمی اور اراضی پلاٹ دینے کے چیف منسٹر کے اعلان کا خیر مقدم کیا۔ حکومت تلنگانہ نے بڑے پیمانے پر 15 IPS عہدیداران کے تبادلوں اور پوسٹنگ کے احکامات جاری کر دیے۔ اس سلسلے میں چیف سیکرٹری شانتی کماری نے احکامات جاری کر دیے۔ تفصیلات کے مطابق ایڈیشنل ڈائریکٹر مہیش مرلی دھر بھاگوت کو بعد تبادلہ تلنگانہ لا اینڈ آرڈر
एडिशनल डायरेक्टर मुकर्रर किया गया। एडिशनल डायरेक्टर स्वाति लकड़ा जीएसपी बटालियन को पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एंड होम गार्ड्स एडिशनल डायरेक्टर बनाया गया। एडिशनल डायरेक्टर विजय कुमार का जो ऑपरेशन ग्रेहाउंड्स और ऑक्टोपस थे तेलंगाना पुलिस प्रिंसिपल और वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स के ओहदे पर तबादला किया गया। संजय कुमार जैन टीजीएसपी बटालियन तबादला किया गया। एम स्टीफन को एडिशनल डायरेक्टर ग्रेहाउंड्स मुकर्रर किया गया, जबकि जी श्रीधर बाबू जो मल्टी जोन 2 में तैनात थे तबादला करते हुए उन्हें रचाकुंडा का कमिश्नर पुलिस बनाया गया। रचाकुंडा कमिश्नर पुलिस तरुण जोशी को डायरेक्टर एंटी करप्शन ब्यूरो मुकर्रर किया गया। एस चंद्रशेखर रेड्डी को पुलिस प्रिंसिपल आईजी बनाया गया है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने तंज किया कि तेलंगाना में तब्दीली लाने के वादों के जरिए इख्तिदार में आने वाली कांग्रेस पार्टी ने वाकई तब्दीली ला दी। रियासत में सरकारी हॉस्टलों की हालत जार पर रद्द-ए-अमल में केटीआर ने कहा कि कांग्रेस इख्तिदार में आई और रियासत में बड़ी तब्दीली आई। उन्होंने कहा कि साल 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी के दौरे हुकूमत में सरकारी हॉस्टलों में ऐसा ही खाना दिया जाता था और आज कांग्रेस के दौरे हुकूमत में ऐसे ही मनाजिर दोबारा देखे जा रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सरकारी हॉस्टलों में नाश्ता बहुत खराब दिया जा रहा है। हॉस्टल के तालिब इल्मों के नाश्ते में छिपकली और कीड़े नजर आ रहे हैं। मुंगेर के एक सोशल वेलफेयर स्कूल में आलूदा खाना खाने वाले तालिब इल्म की जिंदगी की अलमनाक अंजाम देखने को मिला। सुल्तानपुर के जेएनटीयू हॉस्पिटल में मंगल को छिपकली और चट्टी में चूहा देखकर तलबा दंग रह गए। अब सवाल यह है कि तलबा की जान की जमानत कौन देगा। केटीआर ने यह भी सवाल किया कि ये सब मौजूदा निज़ाम हुकूमत की वजह से है और ये तलबा के लिए मुश्किल हालत है। तेलंगाना के अखिलती स्कूलों में जारिया तालीमी साल के लिए 92,844 तलबा के दाखिले मुकम्मल हुए। इसके बावजूद 27,416 तलबा के दाखिले की गुंजाइश मौजूद है। टिमरिस के स्कूलों में 5वीं जमात तक इंटरमीडिएट तक अखिलती और गैर अखिलती तबकात के बच्चों को मुफ्त दाखिले दिए जाते हैं, जहां अंग्रेजी मीडियम की मियारी तालीम के साथ तलबा और तालिबात को किताबें, मुकम्मल ड्रेस, हॉस्टल की सहूलत और क़याम ताम भी फराहम किया जाता है। सेक्रेटरी टिमरिस आयशा मसरत खानम आईएएस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया। सेक्रेटरी आयशा खानम ने अखिलियतों से अपील की कि वो अपने बच्चों को टिमरिस के स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिए पहल करें। इन स्कूलों में तालीम याफ्ता असातिज़ा मौजूद हैं। काबिल स्टाफ की निगरानी में मेयारी तालीम फराहम की जा रही है। डोर टू डोर जो करते हैं, कैनवसिंग करते हैं थ्रू टीचर्स, थ्रू प्रिंसिपल्स, जो ग्रुप्स बनाए करे तो नाउ इट हैज़ क्रॉस्ड 90,000। लास्ट ईयर इट वाज जस्ट 83,000। दे आर ऑल सैंक्शनड पोस्ट। सैंक्शन पोस्ट का मतलब है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट सैंक्शन देता है कि अगर आपको रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो आप थ्रू आउटसोर्सिंग प्राइवेट एम्प्लॉय यानी जो भी है किसी को हायर करके बच्चों का एजुकेशन स्पॉइल नहीं होना, इसके लिए हमको ऑलरेडी सैंक्शन है। और जितना भी हम लोगों के पास गवर्नमेंट रेगुलर स्टाफ है वो स्टाफ को छोड़ के अगर हमारे पास आउटसोर्सिंग सैंक्शन पोस्ट है तो हम उसको आउटसोर्सिंग में ले लेते। आउटसोर्सिंग के लिए स्टाफ का जो नियामकम है, उनका जो अपॉइंटमेंट है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी करती। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विल बी द चेयरमैन और जो है सो DMWO, RLC और प्रिंसिपल जो है सो मेंबर्स रहते हैं। वो लोग लोकल प्रेस में एडवर्टाइजमेंट दे के 2-3 लोग जो भी अप्लाई कर लेते हैं उनके एप्लीकेशंस को स्क्रूटिनी करके फिर उनको इंटरव्यू लेते हैं, क्योंकि टीचर का पोस्ट डेमोन्स्ट्रेशन करना ज़रूरी रहता है। फिर उसके बाद में दे विल सर्कुलेट द फाइल टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड वो लोग उसका नियामकम करते हैं। वो भी अभी ये जब से 12 जून है ना, क्योंकि यूजुअली कैसा रहता है आउटसोर्सिंग का कि ये मई का महीना यूजुअली स्कूल्स आर क्लोज्ड, बंद रहते हैं, इसीलिए मई के महीने में यूजुअली वी डोंट हैव देम। जून में जब स्कूल्स खुलते हैं तब फिर से फ्रेश उन लोगों के साथ में ये लोग एग्रीमेंट करके आउटसोर्सिंग पे लेते हैं 24। लेकिन अब की बात आप नॉन माइनॉरिटीज को एक मिनट, वो पहले मैं बोलती 92-24 में एडमिट हुए सो 63,271 लिख लीजिए। हाँ, और नॉन माइनॉरिटी कोटा 30,056 है। हाँ, 30,056। उसमें फिल कितने हुए वो भी बोल देती 29,953, यानी 30,000 को 29,900 मतलब पूरे 30,000 फिल हो गए। उसके बावजूद भी थ्रू VIPs, थ्रू ऑनरेबल MLAs, ऑनरेबल MPs जो भी एप्लीकेशंस हमारे पास आते हैं नॉन माइनॉरिटी कोटा के, वो लोग जो रेकमेंड करते हैं वो लोग आए तो अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट वी कैन नॉट डिनाई एजुकेशन। कांग्रेस लीडर और साबिक रुकन असम्बली जगारेड्डी की अहलिया निर्मला जगारेड्डी ने तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन के तौर पर आज अपना ओहदा संभाल लिया है। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब में रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, पूनम प्रभाकर और दीगर कांग्रेस कायदीन भी मौजूद थे। इन कायदीन ने निर्मला को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की।
तेलंगाना कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड के चेयरपर्सन की हैसियत से जिला कांग्रेस सदर मोहन रेड्डी को कॉरपोरेशन के चेयरमैन की हैसियत से नामजद किया गया, जिसके बाद आज उन्होंने अपना जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर गवर्नमेंट एडवाइजर मोहम्मद अली शबीर, रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर, कानून साज कौंसिल कारकुन महेश कुमार गौड़, रुकन असम्बली बोधन सुदर्शन रेड्डी, उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान के अलावा जिला से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मोहन रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने उन पर एतमाद किया और उन्हें अहम जिम्मेदारी दी है, जिस पर वो इजहार तशक्कुर करते हैं। सिद्दीपेट में एएसआई के उमर रेड्डी के जरिए एडवोकेट एम रवि कुमार पर मुबैना हमले के खिलाफ वकला ने आज हैदराबाद सिटी सिविल कोर्ट में बाइकआउट किया। उन्होंने एएसआई की मुअत्तली और तौहीन अदालत की कार्रवाई का भी मुतालबा किया। इस मौके पर एहतजाजी वकला अपने हाथों में प्लेकार्ड थामे एहतजाज और नारे बुलंद करते देखे गए। शहर हैदराबाद के नौजवान मोहम्मद ख्वाजा मसीउद्दीन 26 जून से लापता है। उनके वालिद मोहम्मद वली पाशा ने दफ्तर सियासत पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने इस मामले में बोरावंडा पुलिस स्टेशन में भी शिकायत लिखाई है। इस केस को किसी को ये शख्स नजर आए तो इन नंबरात पर इतला दे सकते हैं 8331855248 या फिर 8886301720 पर भी रब्त पैदा किया जा सकता है। शहर हैदराबाद के आरटीसी क्रॉस रोड पर वाक़ई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में हादसाती तौर पर आग लग गई। दुकान में आग लगते ही इब्तिदा में 3 फिर मजीद 2 फायर इंजन रवाना किए गए और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन फौरी तौर पर इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका। तो इमारत के शीशे तोड़ते हुए और मुसलसल कोशिश के बाद ही आग पर काबू पाया जा सका। चिकड़पली के एसीपी रमेश कुमार और दीगर पुलिस ओहदेदारान इस मौके पर मौजूद थे। आतिशबाजी की वजह से आरटीसी क्रॉस रोड पर तकरीबन 1 घंटा ट्रैफिक जाम रही। 2 घंटे के बाद आग पर काबू पा लिया गया और मुकामी लोगों ने राहत की सांस ली। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। सियासत टीवी के न्यूज बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। जिले मंचिरियाल के चिन्नूर शहर में अम्बेडकर मुजस्समे के रूबरू प्रेस क्लब के सहाफियों की जानिब से जबरदस्त एहतजाज किया गया और बाइक रैली भी निकाली गई। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मीडिया के नुमाइंदे पर पुलिस हमले की शदीद मजम्मत करते हुए एहतजाज किया गया और तहसीलदार को मेमोरेंडम भी पेश किया गया। चिन्नूर प्रेस क्लब के सदर मदनिया ने कहा कि सहाफी पर पुलिस की जानिब से जो हमला हुआ इसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। सहाफी पर हमला करने वाले पुलिस ओहदेदार को फौरी बरतरफ करने और फौरी तौर पर इस सिलसिले में कार्रवाई की मांग की गई। నిన్న ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో నిరుద్యోగులు చేసిన ధర్నాను కవరేజ్ చేసేందుకు వెళ్ళిన జీ న్యూస్ రిపోర్టర్పై సిఐ దాడిని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. మన జీటీవీ రిపోర్టర్ నేను రిపోర్టర్ అని చెప్పినప్పటికీ కూడా సిఐ అధికారుల మెప్పు పొందేందుకు వీధి రౌడీని గుంజుకపోయినట్టు కాలర్ పట్టు గుంజుకుపోవడం ఇది హేయమైన చర్య. ఇలాంటి దాడులు పునరావృతం కాకుండా ఉండాలంటే కొత్తగా బాధ్యతలు తీసుకున్న డీజీపీ గారు సిఐని వెంటనే సస్పెండ్ చేయాలి. ఇక నుండి ఎక్కడైనా రిపోర్టర్లపై దాడులు చేసినట్లయితే ఆందోళన తీవ్రతరం చేస్తాం. ఇంకొకటి ఏంటంటే గతంలో ఉన్న పాలసీని ఈ ప్రభుత్వం అమలు చేసేందుకు కృషి చేస్తున్నది. ఇది మంచి చర్య కాదు. విలేకరులపై దాడులు చేయడం అనేది, విలేకరులపై దాడులు చేస్తే సహించేది లేదు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అవసరమైతే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ధర్నా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. आलमी शोहरत याफ्ता साबिक टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की मानखेज पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल है। इंस्टाग्राम स्टोरी पर साबिक टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने पोस्ट रीशेयर की जिसमें उन्होंने अल्लाह के सामने रोने को बेहतर करार दिया। सानिया मिर्जा अक्सर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दिलचस्प स्टोरीज शेयर करती रहती हैं। इस बार सानिया मिर्जा एक हैरत अंगेज स्टोरी पोस्ट की है जिसमें उन्होंने कहा कि जाए नमाज पर अल्लाह के सामने रोना इंसानों के सामने रोने से करोड़ा बेहतर है। वाज़ेह के सानिया की इंस्टाग्राम पर शेयर करदा स्टोरी अक्सर वायरल होती है और सारिफीन के लिए
मौजू बहस भी बनती है। टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्ज़ा ने इसी साल अपने अफराद ख़ानदान के हमरा हज बैतुल्लाह की सआदत भी हासिल की। उन्होंने इस खूबसूरत सफ़र की चंद तस्वीर और वीडियो भी इंस्टाग्राम पर शेयर की थी। सानिया ने पोस्ट में लिखा कि सिर्फ ये कहूँगी कि ज़िंदगी भर का यादगार और ख़ास सफ़र है तो कम होगा। ये मेरे लिए जिस्म और रूह का एक नाकाबिल यकीन तजुर्बा है जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती। अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से सब्जियों की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं और बढ़ती कीमतों ने आम आदमी का बजट बुरी तरह मुतासिर कर दिया है। हर साल बारिश के मौसम में सब्जियों की कीमतें बढ़ जाती हैं। इस बार भी इजाफा हुआ। लोगों को गर्मी से कुछ मोहलत मिल गई, लेकिन सब्जी मंडी अब गर्म हो गई। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक टमाटर के दाम बढ़ गए और आलू भी अपनी आसमान छूती कीमतों से आम लोगों को परेशान करने लगा। भिंडी और आलू की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ। लोगों को महंगाई ने जीना मुश्किल बना दिया। राशन का सामान पहले ही महंगा है। बारिश की वजह से सब्जियां महंगी हुई। लहसुन पहले 100 था 150 रुपये किलो मिलता रहा, वो अब 250 था 300 रुपये फी किलोग्राम हो गया है। भेंडी और दीगर फलियां 60 था 100 रुपये के दरमियान फरोख्त की जा रही हैं। बाजार में सब्जी खरीदने वाले लोगों का कहना है कि हुकूमत आम आदमी को राहत फराहम करे और महंगाई पर कंट्रोल किया जाए। मुल्क के किसान एक बार फिर सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का फैसला संयोग किसान मोर्चा की मीटिंग में किया गया, जिसमें 17 रियासतों से किसानों के 150 नुमाइंदे शरीक हुए। इस मीटिंग में MSP, किसानों को पेंशन समेत किसानों से मुताल्लिक़ दीगर मसाइल पर हुकूमत के खिलाफ बड़े एहतजाज का फैसला किया गया। किसान लीडरों ने हुकूमत के 3 कवानीन से मुताल्लिक़ भी बातचीत की, जिसके बारे में किसान लीडरों का कहना है कि हुकूमत इन कवानीन के जरिए आमिराना मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहती है। किसान मोर्चा ने तय किया कि वो किसानों के मफाद के लिए तहरीक को आगे बढ़ाएंगे और इससे कबल तमाम रियासतों की तंजीमों को मजबूत किया जाएगा। एहतजाज के प्रोग्राम के तहत किसानों के मुतालबात पर मबनी एक खत भी तैयार किया जाएगा, जो किसानों के दरमियान तकसीम किया जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में टेनिस स्टार साइना नेहवाल के साथ कुछ देर के लिए गेम खेला। इस मौके पर शायकीन ने तालियां बजाकर इसका खैर मकदम किया। आइए देखते हैं ये मनाजिर। और वाई नाज़रीन, बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। गजा पट्टी में शहरी दिफा के तर्जुमान महमूद बसल ने कहा कि गजा शहर के मगरिब में इसराइली फ़ौज ने बमबारी कर दी, जिसमें कम से कम 30 फ़लस्तीनी शहीद हो गए और दर्जनों दीगर जख्मी हुए। उनका कहना था कि जंग और बमबारी के तसलसल में मुतासरा इलाके तक पहुँचने में दुश्वारी है। शहरी दिफा के अमले ने इस इलाके में पहुँचने और जानी नुकसान को बचाने के लिए पेशकदमी की, लेकिन जालिम इसराइली फ़ौज ने उन्हें रोक दिया और इन लोगों पर फायरिंग भी की गई। मुकामी शहरियों ने कहा है कि सड़कों पर लाशें हैं और जख्मी बाशिंदे हैं। याद रहे कि 7 अक्टूबर से जारी इस बदतरीन जंग में इसराइल ने अब तक 38,800 से ज़्यादा लोगों को शहीद कर दिया है, जबकि करीब 92,000 फ़लस्तीनी बाशिंदे जख्मी हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। कांग्रेस की कोरियन कमेटी तेलंगाना के दौरे पर, रियासत से सिर्फ 8 लोकसभा सीटों पर कामयाबी और उससे जुड़े मौज़ूआत पर बातचीत। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाने के बजाय शहर की तरक्की के लिए मरकज से फंड्स लाएं। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर की बीजेपी रियासती सदर किशन रेड्डी पर सख्त तनकीदें। KTR पर भी नुक्ताचीनी। साबिक़ MP और सीनियर कांग्रेस लीडर B हनुमत राव ने राज्यसभा की मखलूआ नशिस्त पर आज पेश किया अपना दावा। कहा गुज़िश्ता 8 सालों से उन्हें एक भी ओहदा नहीं मिला। हुकूमत तेलंगाना ने 15 IPS ओहदेदारान के तबादलों और पोस्टिंग के अहकाम जारी कर दिए। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने जारी किया GO। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से सब्जियों की कीमतें आसमान को छूने लगी। बढ़ती कीमतों ने आम आदमी का बजट खराब कर दिया। हुकूमत महंगाई पर करे कंट्रोल, शहरियों का मुतालबा। और फ़लस्तीनी शहर गाज़ा के मगरिब में इसराइली फ़ौज की ताज़ा बमबारी, कम से कम 30 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों हुए जख्मी। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी था 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड,
और किशन बाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।